ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦੇ ਬਚਿਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੈਨਸਕੇ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਬੋਲ ਕਿਹਾ, PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੋ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਦੇਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਆ 3 ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਜਵਾਬ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ OP ਸੋਨੀ ਸਮੇਤ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦੇ ਬਚਿਆ। ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ 31 ਮਈ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਲ-ਬਾਲ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੈਨਸਕੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਫੈਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਯੂਕਰੇਨ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਨਾ ਲਾਓ। Безперечно, залежимо ми всі від інформації, яку вони поширюють, від швидкості, з якою вони працюють. Звичайно, цьогоріч не святкуємо, але все одно вітаємо, все одно відзначаємо внесок журналістів і журналісток України та усіх, від кого залежить робота засобів масової інформації, операторів, інженерів, редакторів, фотокорів, продюсерів та усіх, ще раз повторюю, без кого неможливий ефір та не працюватимуть сайти. Це люди, які тримають інформаційний фронт, і яким я вдячний за це від імені всіх нас, всіх українців. Нагородив сьогодні кореспондентів і медійників, які працюють на війні зараз. Вручив нагороди також і рідним тих, чиє життя забрала війна. 32 працівника ЗМІ загинули за час від 24 лютого. В цьому переліку різні біографії, різні персональні історії, і не тільки громадяни України. Сьогодні під час спеціальної церемонії в Офісі Президента згадали кожну з них. Вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном
поінформував його про ситуацію на полі бою, про наші можливості і ключові поточні небезпеки, перш за все на Донбасі і у південних районах України. Вдячний прем'єр-міністру Борису Джонсону за повне розуміння наших потреб і за готовність надати Україні саме ту зброю, яка нам так необхідна, щоб захищати життя наших людей. Також говорив з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Звичайно, про оборонну підтримку України. Це обов'язкова тема для кожних моїх переговорів. І я вдячний тим нашим партнерам, які діють швидко і не відкладають свої рішення. Я вдячний Польщі. Обговорили також з Анджеєм питання про статус кандидата для України. Це ключове політичне питання саме зараз. Очікуємо вже найближчими тижнями рішення Європейського Союзу щодо нашої заявки на кандидатство. Я вважаю, що це буде рішення не тільки про Україну, але і про весь європейський проєкт. Про те, чи є у нього майбутнє, як дійсно сильного об'єднання. Готуюсь до нової хвилі звернень та спілкування з політичними та експертними спільнотами світу саме для того, щоб гарантувати нашій державі ту підтримку, якої ми так потребуємо. Це постійний процес збереження уваги, і його не можна зупиняти ні на мить. І це стосується усіх. Насправді, кожна сучасна людина добре знає, як працюють засоби масової інформації. Тримати увагу на одній темі протягом довгого часу дуже складно. Щоб не зменшувалась увага до України, до нашої боротьби за свободу. Кожен і кожна мають продовжувати говорити про те, що відбувається. Поширюйте, будь ласка, інформацію. Підтримуйте наші потреби. Звичайно, в першу чергу це стосується журналістів. І сьогодні, до речі, я хочу побажати їм не замикатися тільки на внутрішньому українському контексті. Чим більше ви будете говорити про Україну у світі, тим швидше ми зможемо закінчити війну і звільнити нашу землю. Звичайно, це стосується і усіх представників держави та української політики. Працюйте заради нашої оборони у єдності і на повну силу. Але не забувайте, що бізнес, сфера культури і просто звичайні люди також можуть зробити немало для того, щоб Україна залишалась в топі глобальної уваги. Простий приклад. Сьогодні мені подарували поштові марки, які випустили в Іспанії на підтримку України. Здавалося б, що може змінити поштова марка, але це символ уваги до нашої боротьби, який побачать мільйони людей. Створювати такі символи, спонукати до створення таких символів, говорити про Україну і спонукати до розмов про Україну – це те, що допомагатиме нам у переговорах з представниками держав про конкретну важливу допомогу, яка так необхідна сьогодні Україні. Наші герої не здають позиції в Сєвєродонецьку. У місті продовжуються запеклі вуличні бої. Лисичанськ, Слов'янськ, Бахмут, Святогір'я, Авдіївка, Курахове та інші напрямки російських ударів – це сьогодні найгарячіші точки протистояння. Російська армія намагається задіяти на Донбаському напрямку ще додаткові сили, але 103-й день і український Донбас стоїть міцно. Робимо все для оборони і на Запорізькому напрямку, на Миколаївському також. Я вдячний кожному і кожній, хто витримує тиск, потужний тиск окупантів і захищає нашу державу. 17 тисяч 864 учасника бойових дій відзначені державними нагородами України за час з 24 лютого. Це число на 100% демонструє, який масштаб героїзму нашого народу став відповіддю на повномасштабне вторгнення Росії. Підписав сьогодні новий указ про нагородження наших військових. 121 воїн відзначені нагородами, 32 із них посмертно. Вічна пам'ять усім, хто віддав своє життя за Україну. Вічна слава усім нашим героям. Слава Україні! ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਬੋਲ ਕੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਿੱਖਾ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ नहीं झुकाया जिन्ना प्रधानमंत्री मोदी ने झुकाया है। जनता पार्टी के कृत्यों के कारण, भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति के कारण और आज मोदी जी ने, उनकी पार्टी ने पूरी दुनिया में भारत को अपमानित करने का काम किया है। भारत का सर शर्म से झुक गया है। आजादी के 75 वर्षों में आज तक किसी प्रधानमंत्री ने भारत को इतना अपमानित नहीं किया। भारत का सर इस तरीके से दुनिया के सामने नहीं झुकाया जितना नरेंद्र मोदी जी ने झुकाने का काम किया। जितनी इंटरनेशनल बेइज्जती आज मोदी जी ने कराई है और ये पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति के कारण, नरेंद्र मोदी जी की नफरत की राजनीति के कारण आज पूरी दुनिया में भारत सरकार के राजदूतों को, भारत के जो राजदूत हैं वहां पर, उनको बुलाया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है, उनसे माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। गलती करे भारतीय जनता पार्टी, गलती करे भारतीय जनता पार्टी के लोग, गलती करे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, क्योंकि ट्रेनिंग नफरत की इनको मिलती है नरेंद्र मोदी जी से, और माफी भारत को मांगना पड़े। ये 130 करोड़ लोगों का अपमान है, ये भारतवासियों का अपमान है, ये भारत की जनता का और भारत का अपमान है, जो मोदी जी और उनकी पार्टी की वजह से आज दुनिया के स्तर पे हमें झेलने और बर्दाश्त करना पड़ रहा है। दूसरा विषय, अभी आप लोगों ने देखा होगा, सुबह सत्येंद्र जैन के घर पे ईडी का छापा हो गया। 5 दिनों तक सत्येंद्र जैन से पूछताछ हुई, कुछ नहीं मिला सत्येंद्र जैन के पास, कोई भ्रष्टाचार नहीं खोज पाई मोदी जी की एजेंसी ईडी। और हाई कोर्ट में जब पूछा गया तो कह दिया सत्येंद्र जैन के खिलाफ तो कोई एफआईआर ही नहीं है, सत्येंद्र जैन के खिलाफ तो कोई शिकायत ही नहीं है। तो जब सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, कोई शिकायत नहीं, तो उनको गिरफ्तार करके क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है क्योंकि सत्येंद्र जैन एक ईमानदार इंसान है और दिल्ली के अंदर बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को जनता के लिए देकर पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। पूरी दुनिया में दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल की चर्चा हो रही है और उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान सत्येंद्र जैन का है। आज उनको गिरफ्तार करके रखा गया है और जब उनको अपमानित कर लिया, 5 दिन तक कुछ नहीं मिला, कह दिया एफआईआर नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, तो अब पहुंच गए सत्येंद्र जैन के घर पे, उनके पत्नी को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को वहां अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और आप सारे लोग जानते हैं ये पहला मौका नहीं है। सीबीआई का, ईडी का, आईटी का छापा सत्येंद्र जैन के घर पे बहुत बार पड़ चुका है, पहले भी पड़ चुका है, लेकिन कभी कुछ हासिल नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं मिला। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी, ये जो इंटरनेशनल बेइज्जती आपकी हो रही है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत अपमानित हो रहा है, भारत शर्मिंदा हो रहा है आपके कारण, उन खबरों को दबाने के लिए आज आपने सुबह सुबह ईडी का छापा सत्येंद्र जैन के घर पे मरवा दिया। यह अपमान है एक अच्छे, एक ईमानदार स्वास्थ्य मंत्री का भी, और साथ ही साथ जिस समुदाय से वो आते हैं, जैन समुदाय से, उस समुदाय का एक बड़ा योगदान सामाजिक कार्यों में, देश की तरक्की और विकास में है। आज वो पूरा का पूरा समाज सत्येंद्र जैन के साथ हो रहे,
उत्पीड़न और प्रताड़ना की कार्रवाई से दुखी है, आक्रोशित है, गुस्से में है। पूरे देश के जैन समुदाय के लोगों को लग रहा है कि आज उनके समुदाय के व्यक्तियों को टारगेट करके, सत्येंद्र जैन को टारगेट करके उनको और उनके परिवार को बार बार प्रताड़ित और अपमानित करने का काम किया जा रहा है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, केजरीवाल जी तो आपसे कह चुके हैं, देश के लिए कुछ अच्छा काम कीजिए और हम सबके प्रति इतनी दुर्भावना अगर आपके मन में भरी पड़ी है तो एक साथ सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए, लेकिन शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, देश की तरक्की पर कुछ काम करके इस देश के लोगों को दिखाइए। मुझे इतनी बात कहनी थी, आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। संजय भाई, जिस हिसाब से अरुण सिंह ने लेटर लिखकर पहले ही ये जाहिर कर दिया था कि ये जो बातें हो रही हैं सांप्रदायिक हिसाब से बेस फैलाया जा रहा है, इस तरह का कोई भी क्रांति हम लोग नहीं करते, हम लोग सर्वधर्म सर्व के साथ चलते हैं, उसके बाद से शाम में कार्रवाई होती है। देखिए ऐसा है, बाद से फिर पीएम पर आरोप लगाना क्यों? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी को नफरत की ट्रेनिंग देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं। उनकी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, वो पूरे देश में नफरत का बीज बोने का काम करती है, दूसरे धर्मों को अपमानित करने का काम करती है। और इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को शर्मिंदा होना पड़ा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 75 वर्षों की आजादी में मैंने कहा तो आपसे, इतनी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती, भारत को शर्मिंदा करने की कार्रवाई किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की जितनी नरेंद्र मोदी जी ने अकेले की है। आज हमारे राजदूतों को बुला बुला के माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है। 130 करोड़ भारतीयों का सर शर्म से झुक गया मोदी जी और उनकी पार्टी की वजह से, मोदी जी के कारनामों की वजह से। तो ये एक बहुत, आप सोचिए, छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोग, भारत के लोग, उनके सामानों का बहिष्कार हो रहा है। भारतीयों को कितना अपमानित महसूस करना पड़ रहा है दुनिया के अलग अलग देशों में। पूरी दुनिया में आप भारत को शर्मिंदा कर रहे हैं, बेइज्जती करा रहे हैं भारत की। तो ये कोरी बयानबाजियां, इससे कोई काम चलने वाला नहीं है। असली चेहरा जो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का है वो सामने आ चुका है। और आप देख रहे हैं कि अपनी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती को छुपाने के लिए सुबह सुबह ईडी पहुंच जाती है सत्येंद्र जैन के घर पे। ये क्या तमाशा है? आप कहते हैं उन पे कोई एफआईआर नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई शिकायत नहीं, और उसी आदमी को आप बार बार टारगेट कर रहे हैं। तो ये पूरे देश की जनता, हमारा एक एक कार्यकर्ता देख रहा है और समय आने पर इसका जवाब दिया जाएगा। संजय भाई, बीजेपी के तमाम जो नेता वो कह रहे हैं कि आप जितेंद्र सिंह तोमर को भी ऐसे ही क्लीन चिट दे रहे थे, लेकिन अंततः क्या हुआ? क्या हुआ पूछिए उनसे। आप सत्येंद्र जैन पे आप क्लीन चिट, भाजपाइयों से पूछिए क्या हुआ जितेंद्र सिंह तोमर के मामले में, वही बताएंगे आपको क्या हुआ। पूछिए उनसे, मैं पूछ रहा हूं भाजपाइयों से। मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा, क्या हुआ उसमें? प्रमुख सचिव राजेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया, क्या हुआ उसमें? उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई का छापा मारा, क्या हुआ उसमें? ईडी का सीबीआई का छापा हमारे कई मंत्रियों पे मारा, क्या हुआ उसमें? 140 मुकदमे हमारे 34 विधायकों के ऊपर लिखे गए, क्या हुआ उसमें? 72 मामलों में कोर्ट से बरी हो गए, दिल्ली पुलिस को लताड़ लगी, क्या हुआ उसमें? क्या हुआ उसमें? 23 एफआईआर मेरे खिलाफ की बाबा जी ने उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया, एक दिन में 9 एफआईआर की, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया, क्या हुआ उसमें? मैं पूछ रहा हूं भाजपाइयों से, बताएं। खाली एक बदनाम करने के लिए द्वेष की और दुर्भावना की राजनीति चला रहे हैं आप। चलाइए, आपके पास ताकत है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए, इंटरनेशनल बेइज्जती छुपाने के लिए आम आदमी भाजपा इस तरीके के प्रपंच रच रही है। भाजपा भी कह रही है कि कहीं ना कहीं पंजाब में कानूनी व्यवस्था की नाकामी छुपाने के लिए, सीरियल किलिंग्स छुपाने के लिए
लाश छिपाने के लिए जिस तरीके के वहाँ पे खालिस्तानी समर्थक नारे लग रहे हैं, उनको छुपाने के लिए इस तरीके की कॉन्फ्रेंसेज और इस तरीके की वचन दिए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी। देखिए, ऐसा है कि इस प्रकार के ड्रामेबाजी के बयानों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पूरा देश देख रहा है कि कश्मीर जल रहा है और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की चिंता आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की, उनके नेताओं की गिरफ्तारी करने की, हमारे खिलाफ ऊट पटांग बयानबाजी करने की है। आज कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है। कश्मीर फाइल्स फिल्म आई तो भाजपाई रात रात भर रो रहे थे, ड्रामे कर रहे थे, पिक्चर देखो का प्रमोशन कर रहे थे। एक डायरेक्टर के साथ मिलके, प्रोड्यूसर के साथ मिलके करोड़ों रुपए की कमाई में जुटे हुए थे। लेकिन आज जब कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है तो 7 दरवाजे के पीछे नरेंद्र मोदी जी छिपे हैं और बैठकों की नौटंकी अमित शाह जी कर रहे हैं। तमाम पत्र सामने आ चुके हैं। कश्मीरी पंडित अपनी सुरक्षा चाह रहे थे, एप्लीकेशन दे रहे थे बार बार, हम यहां सुरक्षित नहीं, हमें यहां से ट्रांसफर कर दो। कहने लगे तुमने बॉन्ड साइन किया है, तुम लोग बंधक हो, उसी कश्मीर में काम करोगे जहां तुम्हारी मौत हो जाए या आतंकवाद की घटनाओं के मौत के घाट उतार दिया जाए। आज कश्मीर पलायन के दृश्य देख रहा है। छोटे छोटे बच्चों के साथ, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे, सड़कों पे भीड़ लगी हुई है। और ऐसा दृश्य हिंदुस्तान ने 2 बार देखा। 90 के दशक में जब भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार केंद्र में थी, जगमोहन वहां के राज्यपाल थे। 2022 में जिस समय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भाजपा कह रही थी हम नया कश्मीर बनाएंगे, वहां इंडस्ट्री लगेगी, वहां जमीन खरीदिए, वहां रोजगार मिलेगा, वहां कश्मीरी पंडित जो बाहर आए हैं उनको पुनर्वास दिया जाएगा। नया कश्मीर तो नहीं बना, 90 का कश्मीर बन गया। कार्रवाई करें, कार्रवाई करना पड़ेगा इनको। कश्मीरी पंडितों के मन में सुरक्षा का भाव पैदा हो, तभी वहां शांति की बहाली हो सकती है। बहुत धन्यवाद। राजेंद्र नगर विधानसभा से दुर्गेश पाठक की विजय को लेकर कितना आश्वस्त है? 100% आश्वस्त हैं। और यहां पर जो केजरीवाल जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के क्षेत्र में काम किया है, गली गली में उसकी चर्चा है। राजेंद्र नगर के अंदर बड़े अंतर से आम आदमी पार्टी चुनाव जीतेगी। सांप्रदायिक सबसे पेश कराया जा रहा है, इस तरह का कोई भी क्रांति हम लोग नहीं करते। हम लोग सर्वधर्म सर्व के साथ चलते हैं, उसके बाद से शाम में कार्रवाई होती है। देखिए ऐसा है, बाद से फिर पीएम पर आरोप लगाना क्यों? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी को नफरत की ट्रेनिंग देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं। उनकी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, वो पूरे देश में नफरत का बीज बोने का काम करती है, दूसरे धर्मों को अपमानित करने का काम करती है। और इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को शर्मिंदा होना पड़ा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 75 वर्षों की आजादी में मैंने कहा तो आपसे, इतनी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती, भारत को शर्मिंदा करने की कार्रवाई किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की जितनी नरेंद्र मोदी जी ने अकेले की है। आज हमारे राजदूतों को बुला बुला के माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है। 130 करोड़ भारतीयों का सर शर्म से झुक गया मोदी जी और उनकी पार्टी की वजह से, मोदी जी के कारनामों की वजह से। तो ये एक बहुत, आप सोचिए, छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोग, भारत के लोग, उनके सामानों का बहिष्कार हो रहा है। भारतीयों को कितना अपमानित महसूस करना पड़ रहा है दुनिया के अलग अलग देशों में। पूरी दुनिया में आप भारत को शर्मिंदा कर रहे हैं, बेइज्जती करा रहे हैं भारत की। तो ये कोरी बयानबाजियां, इससे कोई काम चलने वाला नहीं है। असली चेहरा जो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का है वो सामने आ चुका है। और आप देख रहे हैं कि अपनी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती को छुपाने के लिए सुबह सुबह ईडी पहुंच जाती है सत्येंद्र जैन के घर पे। ये क्या तमाशा है?
आप कहते हैं उन पे कोई एफआईआर नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई शिकायत नहीं, और उसी आदमी को आप बार बार टारगेट कर रहे हैं। तो ये पूरे देश की जनता, हमारा एक एक कार्यकर्ता देख रहा है और समय आने पर इसका जवाब दिया जाएगा। संजय भाई, बीजेपी के तमाम जो नेता वो कह रहे हैं कि आप जितेंद्र सिंह तोमर को भी ऐसे क्लीन चिट दे रहे थे, लेकिन अंततः क्या हुआ? क्या हुआ पूछिए उनसे, आप सत्येंद्र जैन पे आप क्लीन चिट भाजपाइयों से पूछिए क्या हुआ जितेंद्र सिंह तोमर के मामले में, वही बताएंगे आपको क्या हुआ। पूछिए उनसे, मैं पूछ रहा हूं भाजपाइयों से। मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा, क्या हुआ उसमें? प्रमुख सचिव राजेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया, क्या हुआ उसमें? उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई का छापा मारा, क्या हुआ उसमें? ईडी का सीबीआई का छापा हमारे कई मंत्रियों पे मारा, क्या हुआ उसमें? 140 मुकदमे हमारे 34 विधायकों के ऊपर लिखे गए, क्या हुआ उसमें? 72 मामलों में कोर्ट से बरी हो गए, दिल्ली पुलिस को लताड़ लगी, क्या हुआ उसमें? क्या हुआ उसमें? 23 एफआईआर मेरे खिलाफ की बाबा जी ने उत्तर प्रदेश में, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया, एक दिन में 9 एफआईआर की, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया, क्या हुआ उसमें? मैं पूछ रहा हूं भाजपाइयों से, बताएं। खाली एक बदनाम करने के लिए द्वेष की और दुर्भावना की राजनीति चला रहे हैं आप, चलाइए, आपके पास ताकत है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए, इंटरनेशनल बेइज्जती छुपाने के लिए आम आदमी भाजपा इस तरीके के प्रपंच रच रही है। भाजपा भी कह रही है कहीं ना कहीं पंजाब में कानूनी व्यवस्था की नाकामी छुपाने के लिए, सीरियल किलिंग्स छुपाने के लिए, लाश छुपाने के लिए, जिस तरीके के वहाँ पे खालिस्तानी समर्थक नारे लग रहे हैं उनको छुपाने के लिए इस तरीके की कॉन्फ्रेंसेज और इस तरीके की वचन दिए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी। देखिए, ऐसा है कि इस प्रकार के ड्रामेबाजी के बयानों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पूरा देश देख रहा है कि कश्मीर जल रहा है और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की चिंता आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की, उनके नेताओं की गिरफ्तारी करने की, हमारे खिलाफ ऊट पटांग बयानबाजी करने की है। आज कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है। कश्मीर फाइल्स फिल्म आई तो भाजपाई रात रात भर रो रहे थे, ड्रामे कर रहे थे, पिक्चर देखो का प्रमोशन कर रहे थे। एक डायरेक्टर के साथ मिलके, प्रोड्यूसर के साथ मिलके करोड़ों रुपए की कमाई में जुटे हुए थे। लेकिन आज जब कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है तो 7 दरवाजे के पीछे नरेंद्र मोदी जी छिपे हैं और बैठकों की नौटंकी अमित शाह जी कर रहे हैं। तमाम पत्र सामने आ चुके हैं। कश्मीरी पंडित अपनी सुरक्षा चाह रहे थे, एप्लीकेशन दे रहे थे बार बार, हम यहां सुरक्षित नहीं, हमें यहां से ट्रांसफर कर दो। कहने लगे तुमने बॉन्ड साइन किया है, तुम लोग बंधक हो, उसी कश्मीर में काम करोगे जहां तुम्हारी मौत हो जाए या आतंकवाद की घटनाओं के मौत के घाट उतार दिया जाए। आज कश्मीर पलायन के दृश्य देख रहा है। छोटे छोटे बच्चों के साथ, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे, सड़कों पे भीड़ लगी हुई है। और ऐसा दृश्य हिंदुस्तान ने 2 बार देखा। 90 के दशक में जब भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार केंद्र में थी, जगमोहन वहां के राज्यपाल थे। 2022 में जिस समय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भाजपा कह रही थी हम नया कश्मीर बनाएंगे, वहां इंडस्ट्री लगेगी, वहां जमीन खरीदिए, वहां रोजगार मिलेगा, वहां कश्मीरी पंडित जो बाहर आए हैं उनको पुनर्वास दिया जाएगा। नया कश्मीर तो नहीं बना, 90 का कश्मीर बन गया। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ+ USA ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।